flow, local anodic current is required to give the protection. So it could be, usually it is aluminum, okay, but जिंक नोट्स भी यूज किए जाते हैं. Okay, and they are these anodes are made of either that metal or what you call alloys होते हैं उनके ignoble होते हैं. That means uh, lesser in the galvanic value, and they are attached to the ship's hull. Welding करके उसको attach कर दिया जाता है. The anodes are consumed because they are less noble, they are more susceptible to corrosion. So they are consumed and your hull is protected. And remember one thing, that whenever the anodes are inserted in the hull, the flow of electrons, that is the local anodic current, will always be from the anodes towards the cathode. Initially, क्या हो रहा था, when the anodes are not put, you had a propeller और सी चेस या सी वाल्व जो थे वो ब्रास के थे और आपका हल माइल स्टील का था. सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द करंट वाज फ्रॉम द हल टुवर्ड्स द ब्रास या ब्रॉन्ज प्रोपेलर. दैट मीन्स corrosion was taking place at the anode, which is the hull. So now what we have done, by placing the anodes, we have reversed the direction of current. Local anode current का direction हमने reverse कर दिया by the installation of those anodes. And it is the anodes which get consumed and the hull is protected. So we have made the hull cathode, and that is why it is called cathodic protection. और ये जो मेथड है ये कहाँ यूज किया जाता है? अंडर वाटर हल में, बैलेस्ट टैंक्स पे यूज किया जाता है, एंड अराउंड द स्टर्न एरिया. स्टर्न एरिया में ज़्यादा यूज किए जाते हैं बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द प्रोपेलर, एज द प्रोपेलर इज टर्निंग, देयर इज लॉट ऑफ एयर. वो एयर में ऑक्सीजन होती है, एंड दैट ऑक्सीजन ऑल्सो accelerates the rate of erosion of the anodes. Okay, so the method is used in tanks, especially in cargo ballast tanks, tankers, hull mein. As the anodes supply the power, there is no cost of equipment. ये इसके advantages हैं. The flow of current will always be from the anode towards the cathode. कोई cost of equipment नहीं है. Installation simple है, welding करना है. No supervision required. And the current can never be supplied in the wrong direction. It will always be from the anode towards the cathode. That is from your sacrificial anodes towards the hull. Now, इसकी जो effectiveness है वो depend करती है on the correct amount of current flow. वो बहुत ज़रूरी है. The correct amount of current flow वो ज़रूरी है. So इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है to determine how many anodes are required for a given area. कितने anodes चाहिए and for how much time you want it, 1 year, 2 years, 3 years. ये कैलकुलेशन होना, करेक्ट होना ज़रूरी है. एक मिनट. हाँ, so it is important that the right amount of current flow has to be maintained. और वो तभी होगा when the exact number of anodes are to be inserted over a given area to give protection over a given period of time. 1 साल 2 साल कितने साल के लिए चाहिए, और उसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है टू कैलकुलेट हाउ मेनी anodes are required. Now अगर ये एस्टिमेशन गलत हो जाए, राइट,
then what happens? Your anode will be consumed, totally consumed, khatam ho jayega, and the production will be lost. So if you need from dry dock to dry dock, maybe you require longer anodes, maybe you require anodes, thicker anodes, but that calculation has to be correct. Apart from that, what we do is when we install the anodes on the hull, we keep a few anodes spare in your stores somewhere, एक उसी टाइप पे ballast tanks के अंदर, hull में, or when the ship is in ballast, or when you are making inspection of the tanks, it is always better to compare the rate of erosion of those anodes. Compare it with the ones which you have kept in the stores. क्योंकि दोनों एक ही टाइम पर रखे थे आपने, इंस्टॉल किया था, बहुत स्टोर में रखे थे. सो यू गेट अ फेयर आइडिया कि किस उनका जो ब्रेक डाउन हो रहा है, वे डाउन हो रहा है, वो किस रेट पे हो रहा है. एंड व्हेन द शिप इज इन ballast, the hull is exposed. Again, it's better to inspect the anodes and compare it with the ones which you have kept in the stores to get a fair idea कि wear down कितना हो रहा, how much percentage has gone over a period of time. Now, in the ballast tanks, the anodes which are used are usually welded, right? And whenever you're making inspection of the ballast tanks, make sure that those are intact. उनकी welding खराब नहीं हुई. In cargo tanks, that is in your tankers, जो हम लोग anodes यूज करते हैं, जनरली वो जो सैक्रिफिशियल anodes होते हैं जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के, बट एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम के जो anodes हैं, दे आर नॉट यूज इनसाइड बैलेस्ट टैंक, इनसाइड कार्गो टैंक्स, ऑयल टैंकर्स के. एक स्पार्क हैजर्ड होता है, in case what you call they fall down from a height, they might create a spark. And if your this thing is not जो कार्गो टैंक है वो खाली है, and it has not been आपने उसको वो नहीं कर रखा है अभी, so that spark might create an explosion. So they have this tendency. So that's why we don't use these ones for fear of spark hazard. So this is your sacrificial anode system. The other is your impressed current system of cathodic protection. Impressed current system. And this system is used only to protect the external hull, not the ballast tanks. Tanks के अंदर इसको यूज नहीं. External hull, underwater, yes. Gentlemen, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, impressed current system of cathodic protection. ठीक है, और आपको पूरा लिखना है. Some people just draw the diagram and write a small note is not sufficient. So you need to make the diagram for this question, and you need to explain it in full. The entire process has to be of the ICCP has to be explained. Okay, so we have this anodes which are fitted on the hull, and they are protected from corrosion by maintaining voltage difference between the anodes and the hull. The idea is cathode बना दो, hull को cathode बना दो, whichever way you can. So main चीज क्या है? I will show you with the diagram here. यहाँ पे let me use a highlighter. मेरा लेजर दिखाई दे रहा आपको? हाँ जी guys, can you see my laser? Yes, sir. Okay. So just follow the laser which I'm showing here. Diagram मैंने दिखा रखा है, डिस्प्ले कर रखा है. इसको अगर डायग्राम को समझ जाओगे तो it will be very simple for you to explain it. So this is your shipboard power. hull दिख रहा है आपको यहाँ पे all along the hull. Shipboard power मतलब from the mains जो आपका generators है, वहाँ से power आती है आपके rectifier पे, or you can call it saturable reactor power supply. In short, it is a rectifier. और यहाँ से शिपबोर्ड से जो पावर आ रही है आपको, that is alternating current. जहाज का जो डायनेमो है, जो जनरेटर्स है, they are alternating current. So alternating current 220 volts आ रही है इस रेक्टिफायर पे. What does the rectifier do? It converts the alternating current into a direct current, DC current पे. और एक predetermined value, very minute predetermined value
अनोड को दे देता है। यहाँ से अनोड को आ रही है, ये प्लैटिनम कोटेड टाइटेनियम टेंटलियम के अनोड्स होते हैं, वो हल में है, उसको सप्लाई कर रहा है, राइट। अ वेरी लो, इट्स माइक्रो वोल्ट्स, तो वो सप्लाई का प्री डिटरमिन्ड वैल्यू सप्लाई कर रहा है रेक्टिफायर टू द अनोड। नाउ ऑन द हल यू आर सीइंग दिस रेफरेंस सेल। दिस रेफरेंस सेल इज मेड ऑफ सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड का, ये भी हल में है। What this reference cell does, it measures the potential difference, that is the density, continuously measure करते रहता है। जैसे जैसे सॉल्ट वाटर की डेंसिटी बदल रही है या स्पीड बदल रही है आपकी, इट कंटिन्यूसली मेजर्स द करंट डेंसिटी, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड द हल। उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करता है और कैलकुलेट करके भेज देता है ये मैग्नेटिक एम्पलीफायर कंट्रोलर को, ठीक है। सो द रेफरेंस सेल इज मेजरिंग द एग्जैक्ट वोल्टेज, द करंट डेंसिटी, उसको मेजर कर रहा है और मैग्नीफायर को देख रहा है, एम्पलीफायर को दे रहा है। एंड सिंस दीज रीडिंग्स आर माइक्रो रेंज रीडिंग्स होती है, मैग्नेटिक एम्पलीफायर कंट्रोलर इसको मैग्नीफाई करता है, राइट। उसको पता है कि व्हाट इज द करंट डेंसिटी, उसको ये भी पता है कि जो रेक्टिफायर है वो क्या प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू दे रहा है। सो मैग्नेटिक एम्पलीफायर कंट्रोलर उस वैल्यू को, जो प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू है, उसको ऑल्टर कर देता है। इन अदर वर्ड्स, द मैग्नेटिक एम्पलीफायर कंट्रोलर इनडायरेक्टली regulates the amount of voltage to be given to the anodes. Once again, predetermined value आ रही है रेक्टिफायर से, एग्जैक्ट वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो रेफरेंस सेल कैलकुलेट करता है, एम्पलीफायर को देता है। एम्पलीफायर क्या करता है, कंपेयर करता है कि प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू क्या जा रही है, अभी की वैल्यू क्या है, और इनडायरेक्टली उस वैल्यू को ऑल्टर कर देता है। अगर प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू कम है तो उसको इंक्रीज कर देगा, ज्यादा है तो कम कर देगा। सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर? एक बार फिर बताऊं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, नोट से सही है बट यहाँ पे बड़ा सिंपल उसका ये है। वंस अगेन, शिप बोर्ड पावर विच इज ऑल्टरनेटिंग, जनरेटर से जो आ रही है, मेन से आ रही है, किसमें आती है, रेक्टिफायर पे आती है। रेक्टिफायर उसको रिड्यूस करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट बना देता है, और एक प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू, let's say 3 microvolts या 4 या 6, whatever, depending on the size of the ship, size of the anode, एक प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू इसको दे देता है, जो प्लैटिनम कोटेड टाइटेनियम अनोड है, टेंटलम का, उसको दे दिया उसने प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू। नाउ ये हल है आपका, हल में आपका एक रेफरेंस सेल है। ये रेफरेंस सेल क्या कर रहा है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है बिटवीन इटसेल्फ एंड द हल। मेरे और हल के बीच, इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, स्मॉल गैप, विच इज गुड इनफ टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द वोल्टेज बिटवीन इटसेल्फ एंड द हल, उसको मेजर करता है और एम्पलीफायर को दे देता है। बिकॉज दीज आर मैक्रो रेंज वैल्यूज, तो उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करना पड़ता है, तो एम्पलीफाई करके इसके पास आ गया मैग्नेटिक एम्पलीफायर कंट्रोलर। अब मैग्नेटिक एम्पलीफायर कंट्रोलर क्या करता है, लेट्स से प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू 4 माइक्रोवोल्ट्स है, ठीक है, प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू जो कंटिन्यूसली जा रही है। रेफरेंस सेल ने मेजर किया कि इस वक्त जो वैल्यू है वो है 6 माइक्रोवोल्ट्स। तो मैग्नेटिक एम्पलीफायर क्या करता है, कंपेयर करता है, कितनी वैल्यू जा रही है, 4 माइक्रोवोल्ट्स, करंट डेंसिटी क्या है, 6। सो मैग्नेटिक एम्पलीफायर इस वैल्यू को 6 कर देगा। प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू 4 थी, करंट डेंसिटी 6 है,
तो उसको वो इंक्रीज कर देगा। लेट्स से सॉल्ट वाटर से हट के अब तुम फ्रेश वाटर में आ गए हो, वहाँ पे उसने मेजर किया और उसको कम मिल रही, या फॉर वट एवर रीजन उसको कम मिल रही है डेंसिटी, जो वोल्टेज मिल रही है वो कम मिल रही है, लेट्स से इसको 3 मिल रही है, 3.5 मिल रही है। एम्पलीफायर को पता है कि जो प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू है वो 4 है, तो एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको कम कर देगा, 3 कर देगा। So in other words, this magnetic amplifier controller decides finally what voltage is to be supplied to the anode. तो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, कम बाहर की डेंसिटी ज़्यादा है तो इंक्रीज कर देगा प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू से, और बाहर की जो डेंसिटी है, करंट डेंसिटी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो अगर कम है प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू से तो कम कर देगा। सर ये मैग्नेटिक एम्पलीफायर और हल के बीच में जो कनेक्शन है उसका क्या रेफरेंस है? ओके ना, सिल्वर क्लोराइड सेल की बात कर रहे हो या कनेक्शन कैसे होता है? नो सर, ये हल से लेके मैग्नेटिक एम्पलीफायर कंट्रोलर के बीच में जो कनेक्शन। ओके, हाँ। अब इनके बीच में जो कनेक्शन है, ऑब्वियसली जब आप अनोड लगा रहे हो और आप ये जा रहे हो तो केबल्स जाते हैं, दोस केबल्स हैव टू पास थ्रू डक्ट्स, और दोस डक्ट्स हैव टू पास थ्रू द हल। इसका मतलब हल में छेद करना पड़ता है, यू नो, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स आर देयर, नहीं तो कनेक्शन कैसे होगा? सो स्पेशल डक्ट्स आर मेड, and those ducts are made to very strict classical society या सोलस के स्टैंडर्ड्स। चलो वो अभी इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, सो यहाँ पे आगे हम अनोड्स फिटेड है, ऑल अराउंड द हल अनोड्स फिटेड है। बड़े जहाज़ों में 2 सिस्टम होंगे, एक पीछे को प्रोटेक्ट कर रहा है, एक आगे को प्रोटेक्ट कर रहा है, और इनके जो अनोड्स होते हैं दे आर नॉन कंज्यूमेबल अनोड्स। नॉन कंज्यूमेबल मीन दे आर नॉट मेड ऑफ जिंक एल्यूमिनियम, दे आर मेड सिल्वर का, देखो यहाँ पे सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड का रेफरेंस सेल है। तो इनके जो होते हैं अनोड्स दे आर नॉट कंज्यूमेबल। कॉस्ट ज़्यादा है, इनिशियल कॉस्ट इसकी ज़्यादा है आईसीसीपी की, राइट, दैन द अदर वन, लेकिन थोड़े से उसके एडवांटेजेस है, थोड़े से इसके एडवांटेजेस, थोड़े उसके डिसएडवांटेजेस, थोड़े इसके डिसएडवांटेज। जो सैक्रिफिशियल अनोड सिस्टम है, आपको कुछ नहीं करना, आपने खाली कैलकुलेट कर लिया कितने अनोड्स लगाने हैं, कितने एरिया के लिए चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, आपने फिट कर दिया, वेल्ड कर दिया, और उनको ड्राइडॉक टू ड्राइडॉक चेंज करते रहे। सो एवरी ड्राइडॉक यू हैव टू चेंज देम ओवर द पीरियड, ओवर द लाइफ ऑफ द वेसल। 20 साल की जो लाइफ होती है वो कॉस्ट दोनों की बराबर हो जाती है। सैक्रिफिशियल अनोड में करंट विल नेवर बी सप्लाइड इन द रॉन्ग डायरेक्शन, इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम द अनोड्स टुवर्ड्स द हल। नो मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड फॉर सैक्रिफिशियल अनोड सिस्टम। लेकिन आईसीसीपी में एक्सपेंसिव है वो सिस्टम, anodes have been fitted there which are non-consumable system है वहाँ पे, you need a trained engineer, you need to monitor those readings every day, एक log maintain करना पड़ता है उसका, you have to make the correct amount of current is being given। ऐसा नहीं हो कि वैसे तो एम्पलीफायर कंट्रोलर है वो देखते रहता है, बट रीडिंग्स मेंटेन करनी है, राइट। एंड देन पोर्ट में जब आते हो तो पोर्ट में हमें ये, वैसे तो यूजुअली इसको ऑटोमेटिक में सेट करते हैं, पोर्ट में आकर के यू हैव टू पुट इट इनटू मैनुअल, अदरवाइज इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द शिप इट विल स्टार्ट प्रोटेक्टिंग द शोर का जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने लगेगा। और ये जो सेल्स हैं आपके, ये नॉन कंज्यूमेबल है। ओके, सो इसको देखते हैं अभी। AC current from the ship's electrical system is fed to a rectifier and DC power is supplied to the anodes. So वहाँ से 220 वोल्ट्स आ रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट रेक्टिफायर पे, रेक्टिफायर उसको कन्वर्ट करता है, रिड्यूस करता है DC पावर में, and supplies it to the anodes. Then you have a silver या silver chloride का reference cell on the hull which measures the current density in the seawater. That is the voltage difference between itself means the anode, सिल्वर क्लोराइड का जो अनोड है, रेफरेंस सेल जो है, एंड द हल, उसको मेजर करता है। देन द रेफरेंस सेल indirectly regulates the power to the anode,
by means of a controller which amplifies the macro range reference cell current reading, क्योंकि बहुत छोटी माइन्यूट होती है इनको वो करता है, and compares it with the predetermined fixed potential difference जो रेक्टिफायर डायरेक्टली उसको डीसी सप्लाई देता है उससे कंपेयर करता है. So in other words, the reference cell indirectly regulates the power to the anodes. कम है तो ज्यादा कर देगा, ज्यादा है. So the difference between the two readings, which two readings? One which directly जो anodes को जा रही है रेक्टिफायर से, और एक जो आपके रेफरेंस सेल की है. The difference between the two readings is fed to the rectifier, which then alters the current being supplied to the anodes. So अगर डिफरेंस दो का है, आप लेट्स से आपने 4 माइक्रोवोल्ट्स की डायरेक्ट दे रखा है उसको, रेफरेंस सेल कंपेयर करता है, डिफरेंस समझो 2 का ज़्यादा है, 6 है अभी, तो उसको इंक्रीज कर देगा, और कम है तो रिड्यूस कर देगा. So that the exact this thing. Now, non-consumable, relatively noble metals such as lead, silver are used as the anodes, and they are put inside fiberglass bodies. Exposed नहीं रहते, fiberglass bodies के अंदर इसको डाल दिया, and then bolted to flat bars, weld कर देते हैं उसको. The cables, ये जो cables की बात कर रहे थे आप, the cables from the anodes being led through the hull via special ducts. तो minute छेद करने पड़ते हैं, special ducts, and these ducts are built to stringent construction requirements. The anodes are insulated from the hull by shields. मतलब थोड़ा सा गैप होना चाहिए, जो हम लोग anodes लगा रखे हैं from the hull to the this, वहां पर गैप होना चाहिए, नहीं तो हाई डेंसिटी करंट क्या करेगा, उस एरिया का जो पेंट है उसको हटा देगा, उड़ा देगा, और आपका हल एक्सपोज हो जाता है. सो पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा उस पर इंसुलेशन देना पड़ता है. वीएलसीसी में जो बड़े हैं, 2 यूनिट इंस्टॉल किए जाते हैं, एक फॉरवर्ड एरिया में और एक आफ्ट एरिया में, और इनके जो अनोड्स हैं उनको हम रीसेस कर देते हैं, स्पेशली इन द फॉरवर्ड एरिया. रीसेस का मतलब हो गया कि लेट्स से मैं यहाँ पर, ये आपका हल है, अगर आपने यहाँ पे अनोड लगा दिया, समझो, हाँ फॉरवर्ड एंकर एरिया की बात कर रहा हूँ, एंकर एरिया में आपने यहाँ पे एक अनोड लगा रखा है लेट्स से ऐसे करके, और जब एंकर ड्रॉप कर रहे हो और हीव कर रहे हो, देयर आर चांसेस दैट दिस अनोड माइट गेट डैमेज्ड. सो उसके लिए क्या करते हैं, एक रीसेस बना देते हैं. रीसेस का मतलब हो गया कि जो अनोड्स है उसको रीसेस में डाल देते हैं. मैं ऐसी कंटिन्यूएशन में दिखा रहा हूं ऐसे, तो इस तरह का हल में रीसेस अब बना दिया एक, और उस रीसेस के अंदर हमने ये अनोड फिट कर दिया ऐसे. ऐसे उसके अंदर हमने अनोड फिट कर दिया रीसेस के अंदर. नाउ देयर आर लेस चांसेस ऑफ द अनोड गेटिंग डैमेज्ड. अगर हल में लगा दोगे तो पॉसिबली देयर आर चांसेस that it might get damaged. Okay, so due to this thing, the anodes, they must be recessed to prevent being damaged by the anchors forward. Now, 3 factors determine the position of the anodes. कहाँ पे लगाना है इन anodes को? वहाँ पे लगाना है, first, that least contact damage हो. Second, they must interfere as least little as possible with the flow of water around the ship and into the propeller. The correct density must be maintained. ये बहुत important है. Density means your voltage, वो maintain करना जरूरी है. So disadvantages क्या है? It's more expensive to install. अपना जो
ICCP है, then the sacrificial erodes. But the latter has to be removed. Latter means sacrificial erodes को हटाओ, दोबारा लगाओ. Eventual cost for both the system would appear to be similar over the life cycle of the vessel. Sacrificial erodes में हर dry dock to dry dock you will have to change them. Whereas आपने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया और ये इम्प्रेस करंट डाल दिया. इसका करंट जो करंट मेथड है रिक्वायर्स ट्रेड पर्सनल. जो वाला जो दूसरा वाला है उसमें कोई जरूरत ही नहीं मॉनिटर करने की. लॉग शीट्स कंटेनिंग डेली रीडिंग्स वोल्ट्स मिली वोल्ट्स में लिखना पड़ेगा. राइट, मेंटेन एम्पियरेज मेंटेन करनी पड़ेगी. And the reference said red of millivolts must be compared with the predetermined value. Sacrificial erode में जरूरत ही नहीं है. Although the units are automatic, they must be put into the manual control when alongside. Whereas जो sacrificial erode है कोई जरूरत ही नहीं है, जैसे है वैसे ही. तो sacrificial erode the only disadvantage is कि हर dry dock to dry dock तुमको change करना पड़ेगा. बाकी just forget it. Install and forget. And of course the number of anodes that have to be installed वो सही होना चाहिए. वो अगर नहीं सही हुआ calculation आपकी, so then there could be problems. Protection might be lost. Okay, anodes को चाहे आप जब मौका मिलता है आपको during ballast tank inspection or during what you call ड्राफ्ट लेने जा रहे हो 4 and aft, ballast में हो जहाज, तो उस टाइम में देख लो. It's a good time to see them and make sure that they are not painted over. Paint कर देंगे तो सारी गड़बड़ हो जाएगी. So this is your ICCP. Any questions before we come to the type of questions that are usually asked? सर इसकी No वोल्टेज question. को सर इसकी वोल्टेज को मैनुअल में डालने का क्या मीनिंग है? मतलब ऑटोमेटिकली वो कर रहा था, तो मैनुअल में डाल के फिर क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, आपने जो सिस्टम है ICCP ऑटोमेटिक सिस्टम है. अगर उसको स्ट्रेंथ शोर से ज्यादा मिलेगा तो वो उसको प्रोटेक्ट करने लगेगा. और अदरवाइज आप मैनुअल में डालोगे तो मैनुअल से क्या होगा, वो हल्को सिर्फ हल्को ही प्रोटेक्ट करेगा. अगर ऑटोमेटिक में डालोगे जहां से उसको ज्यादा वो मिलेगा वो उसको प्रोटेक्ट करने लगेगा. तो मैनुअल मोड में डाल दे कि दैट यू डू नॉट वांट टू वर्क ऑटोमेटिकली. ऑटोमेटिकली मीन्स लेट्स से देयर इज मोर, लेट्स से कंक्रीट है, वहां पर जेटी में फेंडर्स हैं, बड़ी बड़ी मोटी चेन से वो फेंडर्स को लगा रखते हैं. सो मे बी वो फेंडर्स में जो चेन से गया सारा का सारा वो उसका जो करंट फ्लो हो जाएगा विल बी फ्रॉम यू टुवर्ड्स देम. मैंने आपको बताया ना कि करंट फ्लो जो है उसका आपको प्रोटेक्ट करने के बजाय वो वहां का जो जेटी का स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने लग जाएगा. आपके फेंडर्स होते हैं ना, और फेंडर्स जो है उनमें चेन्स लगी रहती है या सम अदर सिस्टम इज देयर, तो आपको प्रोटेक्ट करने की जगह वो उनको प्रोटेक्ट करने लगेगा. सो तब उसको मैनुअल में डाल दिया. ओके, अब ये है व्हाट इज अ corrosion cell. what are the types of corrosion normally found on board ships? What are the constituents of marine paints? What are the various methods of surface preparation? Methods पूछ रहा है सर, प्रोसीजर्स नहीं पूछ रहा है. और मेथड्स पूछ रहा है किसकी? सरफेस प्रिपरेशन की. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. Describe the sacrificial anode system of cathodic protection and describe the, और जहां पे आप ये कर रहे हैं तो वहां पे डायग्राम भी बना दीजिए.
इंटरेस्ट करंट वाले का. Okay, so this finishes our syllabus for the month of June. Uh, नहीं, ये तो corrosion खत्म हुआ. ओके, हाँ, अभी तो वो बचा है आपका वाटर टाइट डोज. एक मिनट, मैं आपको दिखाऊं जरा. लेट मी सी इफ आई हैव इट हियर. लेट मी शेयर दैट विथ यू. Okay, I'm just sharing my schedule with you. Yeah. Can you see the screen, everyone? Yes, sir. ओके, अच्छा, ये फेज 2 का है. ये फेज 1 का है. ये दिख रहा है आपको फेज 1 का? Yes, sir. ओके, सो मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3. ठीक है. मंथ 1 इज बल्क हेड एंड फोरहेड कंस्ट्रक्शन. ये मई बैच के साथ मैं कर चुका हूं. देन मंथ 2 इज वेल्डिंग एंड HSSP. ये जून बैच के साथ हो चुका है. मतलब जून के साथ हो गया तो मतलब मई के साथ तो हो ही गया है, राइट. देन आपका ये जो करोशन वाटर टाइट है, ये मई, जून, जुलाई बैच के साथ भी ये हो गया है. आप लोग के साथ कर लिया है. ये जून बैच के साथ हुआ है. ये वेल्डिंग मेथड्स, हाँ, वेल्डिंग मेथड्स खत्म हुई ना अभी हमारी वेल्डिंग. वेल्डिंग अभी हमने क्या किया? हाँ, करोशन. करोशन क्या है? और ये आपका आ जाएगा तुम्हारा वाटर टाइट डोज. ये सैक्रिफिशियल एनोड सिस्टम तक हमने कर दिया है. नाउ वी स्टार्ट विद वाटर टाइट डोज. तो ये खत्म हो जाएगा हमारा. ठीक है. एंड देन वंस दिस इज कंप्लीट, बिकॉज वी डिडंट हैव द, एक्चुअली ये होना चाहिए था जुलाई बैच के साथ, क्योंकि जुलाई बैच है नहीं, राइट. तो आपके साथ खत्म कर देंगे. सो आपके साथ हो जाएगा तो मई वालों के साथ भी खत्म हो जाएगा. मई वालों के साथ 4 पीक हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया खत्म. इसको थोड़ा सा ठीक बना देते हैं. क्लियरिटी? Yes, sir. सो हाँ, सो फिर मई वालों के साथ सब कुछ हो जाएगा. तो ये हमारा सारा खत्म हो गया है. देन इन द मंथ ऑफ जुलाई, बिकॉज देयर इज नोबडी कमिंग, तो जुलाई 15 तारीख से लेके अगस्त 15 तारीख तक आप लोग जो मर्जी है. एटलीस्ट आई विल नॉट आस्क फॉर एनी क्लासेस, or maybe I will ask for just one class a week, so that you have more time with the navigation and other things. Navigation में कैप्टन सरीन आ गए, कैप्टन रंजित जैन आ गए. Yes, sir. अच्छा, गुड. सो देन जुलाई में उनके पास काफ़ी टाइम होगा टू, और आपके एग्जाम्स होंगे अगस्त में. मई, ये अप्रैल बैच के, मई बैच के. So he'll have all the period. I will not ask for classes. ठीक है.